No, no, in my mind, I have no gun or I have no biases or prejudices. I'm just asking you, Mr. Modi, that after the clean chit which you got, you wrote a very detailed blog in which you said that I had repeatedly reiterated the same principles in my daily interactions with the media in those fateful days of February, March 2002 as well, publicly underlining, and I'm reading from your blog, the political will as well as the moral responsibility of the government to ensure peace, deliver justice, and punish all those guilty of violence. Mr. Modi, do you feel that your government fulfilled this moral responsibility to ensure peace, yes, not necessary. deliver peace, आगे जाने की जरूरत नहीं है. आप एक काम करो. and handle the आप एक काम करो. Just let me complete. आप एक काम and करो. handle the situation with the political will that was required. सुनिए, आप एडिटर हो. आप बाद में जाके एक भाषण 1 घंटे का दे देना, मुझे क्या प्रॉब्लम है? No, I don't know. आपकी चैनल है, आप बोलते रहना. answer the question. आप बोलते रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. देखिए, आप एक काम कीजिए. हिंदुस्तान के आपको पसंद आए ऐसे 10 कम्युनल राइट उठा लीजिए, पूरे देश के कोई भी 10. उसमें एक 2002 भी ले लीजिए. उसमें कितने एफआईआर दर्ज हुई, कितने अरेस्ट हुए, कितने केस चले, कितनों को सजा हुई, और वो डाटा देश के सामने रख दीजिए. उसमें से अगर आपको लगता है कि मोदी ने फुलफिल नहीं किया, तो 6 दिन प्राइम टाइम में इसी को आप देते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. और अगर मोदी सच है तो ईमानदारी से 30 सेकंड के लिए भी सही न्यूज़ दे देना. No, we have covered all sides of the story, including when you were given a clean chit by the courts, Mr. Modi. So that on that we maintain absolute objectivity. Mr. Modi, my next question to you is on the question of allies, because it's a very significant question. It's a political question. Are you absolutely sure, completely 100% confident, Mr. Modi, that you will cross 272 by yourself and that you will need no other parties to form the government in Delhi? दो चीज़ें आप मिक्स करते हो. एक तो पार्लियामेंट का अरिथमेटिक होता है, उसकी अपनी जगह पर है. सरकार के लिए अरिथमेटिक रहता है, लेकिन देश चलाने के लिए अरिथमेटिक नहीं होता है. देश चलाने के लिए एक स्पिरिट होता है, और स्पिरिट होता है सबका साथ. और इसलिए मान लीजिए मुझे कल 350 भी सीट मिल जाए मेरी पार्टी को, तो भी मेरा मत बनता है कि लोकतंत्र में सभी दलों का महत्व है, हमारे विरोधी दलों का भी महत्व है, हमारी गौर आलोचना करने वालों, तभी तो लोकतंत्र चलता है जी. सरकार चलाने के लिए नंबर तो देश दे देगा, देश चलाने के लिए मुझे सबका सहयोग चाहिए, और मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा सबका सहयोग लेने के लिए, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो. भाई देश चलाना अलग विषय है, सरकार चलाना अलग है. और इसलिए दोनों को आप ऐसे मत कीजिए, आंकड़ों में मत जोड़िए. आंकड़े तो 16 तारीख को पता चल जाएगा. इसको हमें 350 सीट मिल जाए तो भी मैं मानता हूँ एक पार्टी का कोई एक एमपी चुन करके आया होगा ना, मेरे लिए वो उतना ही मूल्यवान है जितने कि 125 करोड़ देशवासी मूल्यवान है. आप जो आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं respect and importance of every person and the importance of taking everyone along. It's not respect, it's a responsibility. Yes, but I also know that Narendra Modi is a very savvy politician, and Mr. Modi, you must admit it, you also know the importance of political arithmetic. Let me bring you back to my question, Mr. Modi. Everyone is watching this interview, and what they want to know from you is that, are you saying that in a post-poll scenario, and please restrict your answer in the context of political arithmetic. I know you spoke about chemistry, and I also know, due to having interviewed you several times in the past, that you are, if you want to, you are very good at avoiding the question, but I want to bring you back to the question. Mr. Modi, tell me, are you absolutely sure that there are all these parties who you have severely criticized, and they have severely criticized? Are you, that you will not seek the support of these parties who have bitterly criticized you and who you have bitterly criticized in the course of these campaigns? I'm talking about parties like Mayawati, Mamta Banerjee, even Jayalalitha to some extent, even Naveen Patnaik to some extent. Can you do business with them if you have to? देखिए, मैं बताता हूँ, आप चुनाव अभियान की जो बातें हैं ना, उसके आधार पर राजनीति नहीं चलती है भाई. आप थोड़ा पुराना इतिहास देख लीजिए ना. पुराना इतिहास, चुनाव की राजनीति, चुनाव एक अलग माहौल होता है. लोक शिक्षा करना एक जिम्मेवारी होती है. हर दल अपनी बात बताता है, अलग अलग तरीके से बताता है, और इसलिए इस चीज़ों को मत चिंता कीजिए, इसकी चिंता मत कीजिए. देखिए, मैं बताता हूँ, जिस दिन मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तब देश के
सभी मेन स्ट्रीम मीडिया का एक ही सेंट्रल स्टोरी था कि बीजेपी को कोई साथी नहीं मिलेंगे, सेंट्रल स्टोरी था। और हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ये पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें बीजेपी के साथ 25 पार्टियां प्री पोल अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है। एनडीए के समय भी कभी प्री पोल अलायंस हमारा नहीं हुआ था। कांग्रेस का भी कभी इतना बड़ा प्री पोल अलायंस नहीं हुआ था। और इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड से भी एनालिसिस करें, अरिथमेटिक छोड़ दो, केमिस्ट्री छोड़ दो, तो भी कुछ आपके सवालों का जवाब अपने आप मिल जाता है। पर मोदी जी, मैंने आपके जब अमेठी में आपने स्पीच दी स्मृति ईरानी के समर्थन में, जहाँ पे आपने कहा कि शी इज़ माई छोटी बहन, तो आपने एक और बात कही थी कि अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ काम इधर कराना हो तो मैं करा सकता हूँ। समाजवादी पार्टी में अगर मुलायम सिंह यादव को कहूँ तो वो आके काम करेंगे। तो मैं दो बातें होती है, एक बात होती है कि किसी के साथ काम करके देश को आगे चलाना, दूसरी बात होती है पॉलिटिकल अरिथमेटिक। मैं तीसरी बार और एक बार इस प्रश्न की कोशिश करूंगा आपसे पूछने कि अगर ज़रूरत पड़े आंकड़े लाने के लिए, इफ़ यू टू ब्रिंग द नंबर्स टुगेदर, आर यू विलिंग टू रीच आउट टू मायावती? Because the BJP and the BSP have worked together in the past. Are you willing to reach out to Mamata Banerjee? Are you willing to reach out to Jayalalitha if required to form the government, get the numbers and form a strong government? दो विषय जरा आपको मैं समझा दूं, और मैं चाहता हूं आप इसी पर पूरा इंटरव्यू पूरा कीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताता हूं मैंने अमेठी में क्या कहा। अमेठी में मेरा विषय ये था, मैंने कहा राहुल जी ने ये कहा कि डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट हमारा रिस्पॉन्ड नहीं करती। दैट वाज हिज स्टेटमेंट। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ है तो आप सार्वजनिक करो कि आपने स्टेट गवर्नमेंट को कितनी चिट्ठियाँ लिखी है, सार्वजनिक करो, आपका काम स्टेट गवर्नमेंट रुकाएगा। और मैंने कहा मुलायम सिंह जी अपने इलाके में रोड बनता है तो मना क्यों करेंगे, अपने यहाँ में अस्पताल बनता है तो क्यों मना करेंगे। तो मैंने कहा ये और 200 पर 2 और मैंने कहा मुझे विश्वास है कि मुलायम सिंह जी का मेरा राजनीतिक मतभेद होगा तो भी अगर मैं डेवलपमेंट का काम लेके जाऊंगा, मुलायम सिंह जी सहर्ष स्वीकार करेंगे। मैंने ये भी कहा कि वहाँ 3 एसपी के एमएलए हैं, 2 बीएसपी के एमएलए हैं, वो भी अगर स्मृति ईरानी जी चुनकर के बाद अच्छा काम लेके जाएंगे, जरूर उनका समर्थन करेंगे। ये मैंने बहुत प्रैक्टिकल विषय रखा। जी बिल्कुल। अब मेरा दूसरा सवाल। हाँ, अब दूसरा आपका सवाल है, वो सवाल आपका इरेलेवेंट इसलिए है क्योंकि सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता भरपूर समर्थन दे रही है। लेकिन जब समर्थन मिलता है तो अहंकार नहीं देती है जनता, जिम्मेवारी देती है। अहंकार मुझे अलग ले जाता है, जिम्मेवारी मुझे जोड़ने के लिए ले जाती है। और मेरा काम रहेगा देश के लिए। मैंने पहले ही कहा आपको, दोबारा बोलता हूँ, और हिंदी में समझ नहीं आया तो फिर एक बार बोलता हूँ, एक एमपी चुन करके आएगा, एक मेरे लिए, वो भी 125 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधि है। सरकार चलाना का मतलब होता है, भले नंबर गेम हो, देश चलाने का मतलब होता है सबका साथ लेना ही चाहिए, सबको साथ लेकर के ही चलना चाहिए। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक बीजेपी है जिसको देश का भला करना है और औरों को नहीं करना है, हम ऐसा नहीं मानते। हालांकि विचार अलग अलग होंगे लेकिन सब लोग देश का भला करना चाहते हैं। पर मोदी जी, आपने why did you antagonize so many parties? Let me give the example of one. Let me take the example of Mamata Banerjee, with whom your greatest war is now going on. You are having a great war with Mayawati now, but you had a longer war with Mamata Banerjee. In one of your recent interviews, Mr. Modi, you said that your decision, I think it was to ABP, you said that your decision to, change the pitch of the attack as the campaign progressed was a strategic decision. But on April 9th, since I've been following all your rallies and your speeches quite carefully, on April 9th, you made a speech where you said that Mamata Banerjee is trying to clear up the potholes of Bengal, which were not cleared up for 32 years. In other words, you said she was doing development work. Later on, as the campaign progressed, you are extremely critical of Mamata Banerjee, and you've said that you understood my question. So why did you change your, just one line, why did you change your line of attack? Did you change the facts? फैक्ट्स भी क्या आपने बदल दिए अपने अटैक को लेकर? मैं बताता हूँ। मैं मानता हूँ कि 35 साल लेफ्ट ने बंगाल को बर्बाद कर दिया।
पूरा ईस्टर्न इंडिया है। अब देखिए, अगर कलकत्ता बहुत ही इकोनॉमिकली वाइब्रेंट होता तो पूरे ईस्टर्न इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा होता। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में पश्चिम बंगाल, जो कि ईस्टर्न इंडिया में बहुत बड़ा रोल कर सकता है, वो एक प्रकार से एक टापू बन गया। सारे हिंदुस्तान की गतिविधि से कट हो गए। 35 साल ऐसे खराब गए। दीदी जब आई तो मेरा मत था कि दीदी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, और मुझे आशा भी थी। जब मैं वहाँ गया तो मैंने कोई इतना रिसर्च नहीं किया था, मोटा मोटा मेरे पास जानकारी थी, और कभी हम लोग मिलते थे तो नमस्ते नमस्ते में बात होती थी। तो मुझे लग रहा था दीदी कुछ कर रही है। तो मैंने उनकी तारीफ़ की कि जो 35 साल में नहीं हुआ, दीदी कोशिश कर रही है। लेकिन जब मैं वापस आया तो ढेर सारे मेल मेरे पर आए, इतनी जानकारी आई, मैं हैरान था यार। मैंने कहा मैंने रिसर्च किया होता तो अच्छा होता। तो मैंने कहा लोकतंत्र के हिसाब, मैं मानता हूँ ईस्टर्न इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो कलकत्ते को बहुत ही वाइब्रेंट सिटी बनाना पड़ेगा, बहुत ही ताकतवर बनाना पड़ेगा, इकोनॉमिकली बहुत ही गति लानी पड़ेगी, जिसका इम्पैक्ट अगल बगल के 5-6 राज्यों पे होगा। अगर वहाँ पर हम अच्छी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं तो नॉट ओनली बंगाल, पूरे ईस्टर्न इंडिया को नुकसान होगा। और 4-5 सेंटर हैं, पटना है, कलकत्ता है, रांची है, गुवाहाटी है, भुवनेश्वर है। ये 5-7 सेंटर को एकदम तेज़ी से उठाने की ज़रूरत है देश के डेवलपमेंट के लिए। उसमें अगर ये बदले की राजनीति में इस समय चला जाएगा दीदी का, लेफ्ट वालों ने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँ, दिखा तो वही दिखा, इससे मुझे पीड़ा हुई है। मेरा बंगाल बर्बाद हो रहा है, मुझे पीड़ा हुई है। और लोगों ने जानकारी दी तो चुनाव में मुझे लगा कि भी मुझे अब सच बोलना पड़ेगा। और लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसा विषय होता है जिसमें लोक शिक्षा करनी चाहिए। हमारी बात लोग माने या ना माने जो अलग बात है, लेकिन हमने धोखेबाजी नहीं की। चेंज ऑफ हार्ट। 3 हफ्ते में आपकी मत बदल गई? 3 हफ्ते नहीं जी, मैं उस समय तो अप्रैल में गया था। अप्रैल 9 और मई 4 के बीच। अरे भाई मैं तो अभी गया ना, मई 4 में तो मैं ये 2 लड्डू की बात करके क्या आया। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं थी? आपको क्या मोदी जी, एक बात है कि क्या आपको इस बात, आपको नहीं लगता कि यू शुड हैव केप्ट द डोर ओपन विद ममता, विद मायावती इफ रिक्वायर्ड? डोर ओपन रखने का ये भी तो तरीका हो सकता है। मैं समझ में नहीं आया मुझे। जितना समझा सकता हूँ बता दिया। ये भी तो डोर ओपन का तरीका हो सकता है। जरा विस्तृत रूप से समझाइए। अब ज़्यादा अभी नहीं करूँगा, 12 के बाद करूँगा। So you'll change your line after the 12th? मैं कहता हूँ ना, देश की जनता ने 16 तारीख को राजीव गांधी के जाने के बाद ऐसी मजबूत सरकार नहीं दी है जो इस बार देने वाली है देश। Modi ji, what about Jayalalitha? You know, she has been attacking you by punching holes in your development record, but I find it interesting that except one rally in mid-April, you have not personally criticized her. It was felt for a long time that if required, Jayalalitha would be one of those. She came for your, when you were sworn in, that she would be, that she would be one of those who would be a natural ally. Do you consider Jayalalitha a natural ally, a potential ally, someone you can work with if required? मैं बताता हूँ, आप ये एलाइज के अंदर समय बर्बाद मत कीजिए। आपके 6 सवाल एक विषय पर हो गए। मैं विस्तार से बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी हो रही है। राजीव गांधी के जाने के बाद ये सबसे अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट बनने वाली है। तो एक विषय पूरा हो गया। दूसरा पार्ट है देश चलाने का। मैंने पहले ही कहा, हिंदुस्तान की किसी एक दल का एक एमपी भी चुन करके आएगा, एक इंडिपेंडेंट भी चुन करके आएगा, मेरे लिए वो 125 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधि है। मेरे लिए वो सम्माननीय इस देश का सांसद है। इन सब के साथ मेरा उत्तम से उत्तम व्यवहार रहेगा। ये मैं 50 बार बोल चुका। नहीं, मुझे लगा कि आपने जब कहा, नहीं, कोई लड़के साथ हो उनको बुलाओ। मुझे लगा कि आपने जब ये बात कही कि ये भी एक तरीका है, in that you are indicating that if required you can work together with all these parties in some way or the other in the future. देखिए, ये फायदे वाला विषय नहीं है। मेरा फायदा हो तो मैं साथ चलूँ, मेरा फायदा ना हो तो ना चलूँ। देश चलाने का यही तरीका होता है, सबको साथ लेकर के चलना। चुनाव में मैं भले ही टाइम्स नाउ से तू मैं कर लूँ, लेकिन जब मुझे देश चलाना है तो मुझे टाइम्स नाउ को भी देश चलाने के काम में जोड़ना होगा। ये तो जिम्मेवारी है जी। आप राजनीति से बाहर निकलो ना, बहुत हो गया भाई।
कब तक राजनीति करते ये इलेक्शन चल रहा है ये तो हमको करने दो ना। ये इलेक्शन चल रहा है तो पॉलिटिकल इश्यूज ही तो हमको पूछे करने जाए। दो रे। दामाद श्री करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले। तो isn't that a indication of the BJP, and since you are the prime ministerial candidate, your personal vendetta against the Gandhi family? मेरा 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई मेरे पर वेंडेटा का आरोप नहीं लगा सकता।